નમસ્તે વિદ્યાર્થીઓ. ધોરણ 9 વિષય હિન્દીમાં આપણે છેલ્લે એ મેરી બીમારી શ્યામાને લી પાઠ નંબર 6 બરાબર આત્મકથા અંશ બરાબર. હવે જે બચ્ચન સાહેબનો જે આત્મકથા ગ્રંથ છે એ આપણે ભણી રહ્યા હતા. એમાં આપણે લગભગ 2 લેક્ચરનું કામ કર્યું છે બરાબર. હરિવંશરાય બચ્ચનની જે આત્મકથા છે એમાં છેલ્લા 2 લેક્ચરથી આપણે કવિ પરિચય અને પાઠની શરૂઆત કરેલી. છેલ્લે સ્ટોરીમાં આપણે એવું જોયેલું હરિવંશરાય બચ્ચનની કે લેખકને બીમારી છે અને લેખકને તેના મોતની કોઈ ચિંતા નથી, તેની બીમારીની કોઈ ચિંતા નથી, પણ તેને ચિંતા એ એના કર્જની, એટલે કે એનું જે દેવું છે, એના જે અન્ય કોઈ વ્યક્તિને જે પૈસા આપવાના છે એની એને ચિંતા છે કે લેખક જ્યારે મૃત્યુ પામશે તો એના ઈલાજમાં જે ખર્ચ થાય છે બરાબર, એ બધો ખર્ચ એ કઈ રીતે ચૂકવશે બરાબર. અને એ જ સમયે એના પત્ની શ્યામા એ લેખકને દિલાસો આપે છે કે જો તમે મૃત્યુ પામશો તો પણ હું તમારો કર્જ એક વ્યક્તિને ચૂકતે કરી દઈશ, એટલે એનાથી તમે ચિંતા મુક્ત રહો. આવું લેખકના પત્ની શ્યામા એ લેખકને જણાવે છે. અહીંયા સુધી આપણે કરેલું અને લેખકે તેની બીમારીનું એક સમગ્ર વર્ણન કરેલું, તેની પત્ની સાથેના તેના વાર્તાલાપનું એ આખું આલેખન કરેલું પુસ્તકમાં. એ બધું આપણે જોયેલું. લગભગ આપણે આજના લેક્ચરમાં એ આ પાઠના અંત તરફ આવી જશું. હવે આગળ આપણે વાત કરવી છે કે લેખકના પત્ની લેખકને દિલાસો આપે છે કે તમે કર્જની ચિંતા ન કરો, કર્જ તો તમે મૃત્યુ પામશો તો પણ હું ચૂકવી દઈશ બરાબર. આવી વાત એ લેખકના પત્ની શ્યામા એ લેખકને કરે છે. પછી આપણે હવે આગળ જોવાનું છે. તો આગળ જે છેલ્લે એમ કહેલું કે ઉસને કહા થા કર્જ તો તુમ્હારે મરને કે બાદ મેં ઉતાર ભી દૂંગી, તુમ ઉસકી ચિંતા છોડો બરાબર. આ શ્યામા કહે છે અને લેખકને. હવે આપણે આગળ જોવાનું છે. મેં સોચને લગા શ્યામાને વજ્ર ही अपनी छाती पर रखकर यह वाक्य कहा होगा બરાબર. એટલે કે લેખકને એવું લાગે છે કે એની પત્ની શ્યામાએ એની છાતી ઉપર પથ્થર રાખીને એ આ વાક્ય કહેલું હશે. મુझे चिंता मुक्त रखने को वह क्या नहीं कर सकती थी બરાબર. એટલે કે એણે આ વાક્ય એ લેખકને ચિંતા મુક્ત, લેખકને ચિંતાથી મુક્ત થવા માટે એ આ વાક્ય કહેલું છે એવું લેખક જણાવે છે. મરને કે લીએ જો મેને અપને આપ કો છોડ દિયા થા વહ મુझे એકદમ ગલત લગા બરાબર. હવે લેખકે અત્યાર સુધી એવું વિચારતા હતા કે હું મૃત્યુ પામું તો પણ કોઈ પ્રશ્ન નથી બરાબર. મૃત્યુને એણે છોડી દીધું હતું, મૃત્યુની ચિંતા કરવાની છોડી દીધી હતી. પણ લેખકને હવે તે ગલત લગાય, એટલે કે લેખકને હવે તે યોગ્ય લાગતું નથી, લેખકને કંઈ ખોટું લાગે છે. મુझे अपने लिए नहीं તો શ્યામા કે લીએ જીને કા સંઘર્ષ કરના ચાહીએ બરાબર. લેખક એમ જણાવે છે કે મારે મારી માટે નહીં પરંતુ શ્યામા એટલે કે તેની પત્ની શ્યામા છે તેના માટે જીવવા માટેનો સંઘર્ષ કરવો જોઈએ. શ્યામા કે લીએ મેને જીવન મેં કુછ નહીં કિયા બરાબર. એની પત્ની શ્યામા માટે એના જીવનમાં કંઈ નથી કરેલું. કભી કરને કે યોગ્ય નહીં રહા, કારણ કે એની પત્ની માટે તે કંઈ કરી શકે તેના માટે તેને કોઈ એવો મોકો મળ્યો નથી કે તે યોગ્ય રહેલ નથી. अब यदि मैं उसे ऐसी स्थिति में छोड़ जाऊँ कि वह मेरे मरने पर मेरा कर्ज उतारने की चिंता करे तो मुझसा जन्मधीय अपराधी को कौन होगा. હવે જો લેખક એવું વિચારે કે જો અત્યાર સુધી મેં મારી પત્ની વિશે કંઈ વિચાર્યું નથી, મારી પત્નીને પૂરતો સપોર્ટ આપ્યો નથી, અને હવે જો મૃત્યુ પામું અને મારા મૃત્યુ પછી પણ મારી પત્ની શ્યામા એ મારા કર્જ ઉતારવાની ચિંતા કરે તો મારાથી મોટો અપરાધી કોણ હોય. લેખકને મનહી મન આવો એક વિચાર આવે છે કે મારે તેની પત્ની, લેખકની પત્ની શ્યામા છે એની ચિંતા કરવી જોઈએ અને એના માટે એણે જીવવું જોઈએ અને જીવન સામે થઈને સંઘર્ષ લડવો જોઈએ બરાબર. આવા લેખકના મનમાં એ મનોમંથન થાય છે, વિચાર આવે છે. નહીં મેં શ્યામા કે લીએ ચિંતાએ નહીં છોડ જાઉંગા નહીં બરાબર. એટલે કે નહીં, હું શ્યામા માટે એની પત્ની માટે એ મૃત્યુ પામું તો ચિંતાઓ મુક્તો જઈશ નહીં. જીને કા રાસ્તા ખોજુંગા બરાબર. જીવા માટેનો રસ્તો ગોતી કાઢીશ. જીકર અપની ચિંતાએ સમાપ્ત કરુંગા, જીવીને હું મારી ચિંતાઓ છે બરાબર એ
समाप्त करीश। एक रात मेरे कानों में किसी ने कहा, बराबर, एक रात्रे एने कान में कोई के कह્યું, एक रास्ता अब भी है, बराबर, एक रास्तो एटले कि एक रस्तो हजी पण छे। 15 दिन के ही इलाज में अपना बटुआ खाली हो गया था, बराबर। ए जे उपाय हतो वो रास्ता, बराबर, एटले कि ए रस्तो हतो एमां तो एने 15 दिवस में एनो बटुओ खाली थई गयो, एटले कि 15 दिवस में ए इलाज पाछळ, लेखकनी बीमारीना इलाज पाछळ 15 दिवस में ए घणो बधो खर्चो थई गयो। मैं कदापि नहीं चाहता था कि पिताजी घर को हाथ लगाए, बराबर। लेखक ने भी जरा इच्छा न होती कि एना पिताजी नु घर चलावे। अपनी वृद्धावस्था में शांति से बैठने को, चाहे उनको भूखे नंगे ही बैठना पड़े, उन्होंने एक सरल स्थल बनाया था, बराबर। एनी वृद्धावस्था माटे एने कंई पण काम करवानुं नथी एवुं लेखके नक्की कर्युं हतुं अने एने एक स्थळ बनावी दीधुं हतुं, त्यां ज तेने बेठवानुं, बराबर, अने शांतिथी अने भूख्या के गमे ते रीते एने त्यां बेसवानुं, आवुं लेखके जणावे छे। मैं उससे उन्हें वंचित करने का कारण नहीं बनना चाहता था, बराबर। एने आराम करवा माथी एने मुक्त करवानुं ए लेखक इच्छता नथी, एने एना माता पिताने आराम आपवो छे लेखकने, एनी पासे तेने काम कराववुं नथी। पर यह भी नियति का एक व्यंग्य था, बराबर, एटले के परंतु आ जे नियति जे आपणुं भाग्य छे, नसीब छे, एनो एक व्यंग हतो के दीकरो ए खाटलामां पड़ेलो छे, बराबर। आपणा लेखक एने एवी बीमारी छे अने एना पिताने ए काम करवुं पड़े छे कि मेरे माता पिता दोनों में से किसी को अपनी छत के नीचे अपनी अंतिम श्वासें छोड़ने का योग नहीं बना था, बराबर। एनी एक ज छत नीचे तेना माता पिता बंनेने पोतानी अंतिम श्वास छोड़वानो योग एटले कि एवो संयोग ए नहीं बना था। ना जाने राम कहाँ लागे माटी, पर उस समय में कैसे जानता, बराबर। आ वखते लेखक एक जानता था नहीं। पछीना पेरेग्राफ में कहे छे, और एक दिन मुझे वह रास्ता दिखाई दिया। एक दिवसे लेखक ने एक रस्तो बतायो जिस पर अपने बल पर चलकर मैं अपनी चिंताएं समाप्त कर सकता था, बराबर। ए रस्तो एवो हतो कि जेना उपर चालीने ए लेखक पोतानी चिंताएं समाप्त करी शके तेम हता। किसी के लिए, विशेषकर श्यामा के लिए, बराबर, किसी के लिए एटले के श्यामा तेनी पत्नी माटे मैं कोई चिंताएं नहीं छोड़ूंगा, ए कंई पण चिंता एनी पत्नी ने ऊपर मूकशे नहीं, आवुं लेखक जणावे छे। इस संकल्प ने मुझे दृष्टि भी दी, बल भी दिया, बराबर। आ संकल्प लेखके करेलो हतो कि हूँ मृत्यु पामूं परंतु मारी पत्नी ने कोई पण चिंता आपीश नहीं, अने आज एनु जे संकल्प हतो एने लेखकने दृष्टि पण आपी अने बळ पण आप्युं। मैंने डॉक्टर बीके मुखर्जी के पास जाकर कहा, बराबर। एने डॉक्टर बीके मुखर्जी हता तेनी पासे जईने कह्युं, डॉक्टर साहब आपका इलाज बहुत महंगा है, मेरे पास आपके इलाज के लिए पैसे नहीं, बराबर। एने डॉक्टर मुखर्जी पासे जईने कीधुं के डॉक्टर तमारो इलाज ए खूब ज मोंघो छे, परंतु मारी पासे ए एटला पैसा नथी। इसके पूर्व कि मैं कुछ और कहूँ या पूछूं, उन्होंने अपने बदनाम मुँहफट स्वभाव से कहा, बराबर। एनो एवा स्वभाव थी एने लेखक ने जे बीके मुखर्जी हता डॉक्टर साहेब एने कहेलू, पैसे नहीं है तो जाओ मरो, बराबर। एटले के जो पैसा नहीं तो जाओ मरी जाओ, आवुं ए डॉक्टर बीके मुखर्जी ए लेखक ने कहे छे कि भाई पैसा नहीं तो पछी मरी जाओ, बराबर। आवुं ए लेखक ने जणावे छे। मुझे जीवन में चुनौती से ही बल मिलता था, बराबर। लेखक ने चुनौती एटले के चैलेंज, बराबर, चैलेंज थी ज एने बळ मळतुं हतुं। वे यदि मुझे 100 बरस जीने का आशीर्वाद भी देते तो शायद जीने के लिए संघर्ष करने का मुझ में इतना बल न आता जितना मैंने उससे जाओ मरो शब्दों से संचय किया। हवे जो डॉक्टरे तेने एम कीधुं होत के जाओ 100 वर्ष जीवो तो लेखक ने बहु बळ न मळत, परंतु एने एम कीधुं ने कि जाओ मरो एटले लेखक ने एक चोक्कस प्रकारनुं एनामां बळ आवेलुं कि नहीं हवे एने मने मरवानुं कीधुं तो मारे जीववुं छे, बराबर। आवुं बळ एनामां आवेलुं। लड़कपन में मेरे पड़ोसी बाबू मुक्ता प्रसाद ने लुई कुने के पानी के इलाज से मुझे परिचित कराया था, बराबर। ये जे एना पाड़ोशी हता, बराबर, मुक्ता प्रसाद एने एक इलाज थी एने परिचय कराव्यो हतो। मेरी ऐसी बीमारी के लिए ठंडे पानी के टब में बैठकर सीड्स बाथ लेने का विधान था, बराबर।
એટલે કે ઠંડા પાણીના ટબમાં બેસીને સીડ્સ બાથ પાણીનો એની પાસે એક વિધાન હતું। एलोपैथी में क्षय के रोगी को दूध घी मक्खन अंडा अधिक से अधिक दिया जाता है। बराबर કે જે એલોપેથીની દવા હોય બરાબર એમાં જે ક્ષયના રોગી હોય તેને દૂધ ઘી માખણ ઈંડા વગેરે વધુને વધુ માત્રામાં એ દેવામાં આવતું હતું। कूने के इलाज में चिकना मना था, सिर्फ कच्ची सब्जियां फल भीगे चने गेहूँ आदि पर रहना था। बराबर काचा शाकभाजीओ फलों पलाळेला चना घઉં वगैरह ऊपर ज રહેવાનું હોય છે। न दवा कुछ खर्च न खुराक पर कुछ खर्च। बराबर दवा पर कहीं खर्च नहीं અને ખોરાક पर પણ કંઈ ખર્ચ નહીં। यही इलाज तो मेरी स्थिति के अनुकूल था। बराबर लेखक पास हम था पण पैसा न था અને આ इलाज એની સ્થિતિ માટે અનુકૂળ હતો। और कामकाज साधारण किए जाना था। बराबर અને कामकाज पण તે કરવા લાગ્યા। मैंने बीके मुखर्जी का नुस्खा फाड़ डाला और कूने के अनुसार सीड्स बाथ आरंभ किया। बराबर એને એનો जो सीड्स बाथનો इलाज હતો બરાબર એના પાડોશી આપેલો હતો એને અમલમાં લાવેલા। તદનુસાર ખોરાક આદि રખી। स्कूल भी जाने लगा। लेखक હવે સ્કૂલે પણ જવા લાગ્યા। केवल रात वाली ट्यूशन छोड़ दी। मात्र रात्रे जे ट्यूशन में जता था ते छोड़ी दीधું। उसका मुआवजा एक तरह से किताबों की बिक्री से मिल जाता। लेखक जो पुस्तकों वेचता था एमांथी एने थोड़ा घणा पैसा मળી जता। श्यामा ने मेरा विरोध न किया। श्यामाए एनी पत्नीए पण तेनो विरोध न कर्यो। जीवन भर में जिस रास्ते पर भी चला उसने स्वस्ति पंथा कहा और मेरे पीछे चली। बराबर लेखक जे कांई करे तो तेनी पत्नी हमेशा तेनी साथे होय छे अने तेनी पाछळ ए चाले छे। मेरी स्नान चिकित्सा के संबंध में भी वह प्रतिदिन अपनी सेवा सहयोग देती रही। बराबर एनी स्नान चिकित्सा में पण ते हमेशा एने सेवा और सहयोग आपती रही। सबसे अधिक अपने इच्छा बल से उसने मुझे अपने रास्ते पर न ठहरने दिया। बराबर तेणे तेना इच्छा बळथी तेनी शक्तिथी एने खूब ज लेखकनी पत्नी श्यामाए तेना पतिने एटले के आपणा लेखकने खूब ज मदद करी। न पीछे फिरने दिया। बराबर पाछळ लेखकने फरवा न दीधा। राह पकड़ तू एक चला चल पा जाएगा मधुशाला। बराबर आ एक सरस मजानुं वाक्य आपेलुं छे। ए लेखकना पत्नी लेखकने जणावे छे। लेकिन अपने अडिग इच्छा बल से उसने जो सबसे बड़ा सहयोग दिया और जो सबसे बड़ा चमत्कार किया वह यह था कि जितने दिन मेरा इलाज चलता रहा उसने अपने सारे रोगों को जैसे कील दिया। बराबर हवे लेखकनो જ્યારે ઇલાજ ચાલી રહ્યો હતો ત્યારે તેની પત્ની શ્યામા એને જે કંઈ બીમારીઓ હતી એ બધાને તેને મારી નાખી। બરાબર તેની પત્ની શ્યામાને કંઈ થોડી ઘણી બીમારીઓ હતી એના પર પણ તેને ધ્યાન ન આપેલું અને લેખકના ઇલાજ પ્રત્યે તેને વધારે ધ્યાન આપેલું। એ ખૂબ જ મોટો એનો લેખકની પત્ની શ્યામાનો સહયોગ એ લેખકને હતો। और कभी एक उंगली दुखने की भी शिकायत न की। बराबर एने एवं पण क्यारे कीधुं नथी कि मने एक नानकड़ी आंगળી पण दुखे छे। शायद उसके प्रति इस निश्चिंतता ने मुझे अपने रोग से लड़ने का जितना बल दिया उतना किसी चीज़ ने नहीं। बराबर एटले के जेनी तेनी पत्नी श्यामा हती ए जे रोग सामे लड़ी रही हती एणे ए लेखकने बळ आपेलुं कि जो मारी पत्नी श्यामा पण रोग सामे लड़ी शके छे तो हूँ तो शुं कहेवाऊं। बराबर आ रीते लेखकने पण ए पोतानी बीमारी सामे लड़वानुं ए खूब ज प्रोत्साहन मळेलुं बळ मळेलुं। इस आत्मनियंत्रण आत्मनिग्रह इच्छा बल हठयोग की समझ में नहीं आता उसे क्या नाम दूँ। बराबर बड़ी महंगी किंमत उसे चुकानी पड़ी। बराबर आ बधुं जे तेनी पत्नी श्यामा हती एणे पोतानी बीमारीने पण एने छोड़ी दीधी। बराबर एनी एणे खूब ज मोटी किंमते चुकाववी पड़ी। अपने क्षय ज्वर से पूर्णतया मुक्त हो जिस दिन मैंने सामान्य भोजन किया। हवे लेखक के पोताना क्षय रोगमांथी ए मुक्त थईने एने ज्यारे सामान्य भोजन लेवानुं शरू कर्युं एटले के 15 एप्रिल 1936 15 एप्रिल 1936 ना रोज ए लेखके प्रथम वखत ज्यारे भोजननी शरूआत करी ठीक उसी दिन। बराबर लेखके पहली वखत पोताना रोगमांथी मुक्त थईने भोजननी शरूआत करी ठीक उसी दिन एटले के तेज दिवसे वह चारपाई पर गिरी और फिर न उठी। बराबर ए तेनी पत्नी एनुं त्यां मृत्यु थयुं। बराबर एटले के मृत्यु तो न थयुं परंतु मृत्यु जेवी परिस्थिति थई। बराबर
એટલે કે એ ખૂબ જ હવે એની પરિસ્થિતિ એવી હતી કે એ પણ હવે જીવન અને મૃત્યુ વચ્ચે એ લડી રહી હતી। 216 दिन बराबर योग शैया पर पड़े रहने के बाद 17 नवंबर 1936 को उसने अपना शरीर छोड़ दिया। 216 દિવસ સુધી તેણે આ રોગ સામે તેની પત્નીએ લડી અને 17 નવેમ્બર 1936ના રોજ એને પોતાનું શરીર છોડી દીધું, એટલે કે શ્યામાનું મૃત્યુ થયું। श्यामा के और अपने विवाहित जीवन के अंतिम 18 महीनों में मुझे और उससे दोनों को मौत के साथ संघर्ष करना पड़ा। बराबर आ जे 18 महीनाओं था एमां लेखकनी पत्नी श्यामा अने लेखक बंनेने ए मौत सामे ए संघर्ष करवो पड़ेलो हतो। मैंने संघर्ष में श्यामा ने अपनी इतनी आंतरिक मंगल कामना दी, એટલે કે તેણે પોતે આંતરિક રીતે એટલો બધો તેને લેખકને એ સપોર્ટ આપેલો, ઇતના સહયોગ દિયા એટલો સહકાર આપેલો, ઉતની અપની સેવા દી એટલી એની સેવા કરી, ઇતના અપને કો દિયા એટલે કે તેનું આપણાપણું એ ઘણું બધું આપેલું, ઇતના અપની ઓર સે મુઝે ચિંતા વિમુક્ત રખા, લેખકને ચિંતા મુક્ત રાખવામાં પણ શ્યામાએ ઘણી મદદ કરી। कि मैंने कि उस संघर्ष में विजयी हुआ, अने संघर्ष में लेखक विजयी थया। लेखक तो साजा थई गया परंतु तेनी पत्नी श्यामा छे एनुं मृत्यु थयुं। पर उसके संघर्ष में मैंने अपनी शुभकामना दी, बहुत सहयोग दिया, बहुत सेवा दी, बहुत अपने को दिया, पर वह पराजित हो गई। बराबर, परंतु ते पोते हिम्मत हारी गई। लेखक ने सारा करीने तेनुं मृत्यु ए आवी गयुं। संभवतः एक मोर्चे की कमजोरी से वह मेरे विषय के मृत्यु की अंतिम सांसों तक चिंता विमुक्त नहीं हो सकी। बराबर, परंतु लेखक ने बात एक कोतरी खाई रही हती कि लेखकनी पत्नीए एना मृत्यु सुधी ए लेखकनी चिंता छोड़ी नहीं। बराबर ने आम लेखक ने ए जे भयंकर बीमारी हती, बराबर, ए भयंकर बीमारी मांथी लेखक मुक्त तो थया परंतु साथे साथे तेनी पत्नीनुं पण ए मृत्यु थयुं। बराबर, आ एक सरस मजानी आत्मकथा ए बच्चनजीए लखेली छे पोताना विषे, पोतानी पत्नी साथे नो जे एनो संबंध छे, एनो जे प्रेम भावना छे, एनी जे शक्ति छे, एनी बीमारी लेखकनी जे क्षयनी बीमारी एने मटी गई एनी पत्नीना सहयोगथी, एनी पत्नीना सपोर्टथी एने पोतानी बीमारी तो मटी गई परंतु तेनी पत्नी श्यामा हती, बराबर, एनुं मृत्यु थयुं। आम एनी पत्नीए तेने केटलो सपोर्ट आपेलो, एनो जीव गुमावीने पण लेखकने साजा करेला, तेनी समग्र वात, तेनुं समग्र चित्रण ए लेखके आ सरस मजाना आत्मकथांशमां ए रजू करेल छे। तो अहींया आपणो सरस मजानो पाठ पूरो थाय छे। तमने अहींया शब्दार्थ अने टिप्पणी आपेली छे ए तमाम तमारे वांचवानी छे अने समजवानी छे। हवे आपणे जे अमुक स्वाध्यायना प्रश्नो छे, बराबर, एनी चर्चा करवानी छे એટલે આપણો પાઠ એ અહીંયા પૂરો થશે। સ્વાધ્યાયના ઘણા બધા પ્રશ્નો તમને આપેલા છે પણ અહીંયા જે આપણે લેક્ચરમાં કરાવીએ છીએ એ જ પ્રશ્નો તમારે કરવાના છે। तो पहलो प्रश्न है सामान्यतः लेखक को कौन सी बीमारी रहती थी। बराबर, एटले कि लेखक ने केवी केवी सामान्य बीमारीओ रहती हती ए लेखके आ पाठनी शरूआत में जणावेल छे कि सामान्यतः लेखक को जुकाम, बुखार, खांसी, सिरदर्द आदि बीमारियां रहती थी। बराबर, आवी नानी नानी बीमारीओ ए लेखक ने रहती हती। पछी नेक्स्ट क्वेश्चन आपेलो छे लेखक एलोपेथी का उपचार क्यों नहीं करते थे। बराबर, लेखक एलोपेथीनो इलाज शा माटे करता न होता। लेखक एलोपेथी का उपचार नहीं करते थे क्योंकि वह महंगा होने के कारण उसके बस के बहार था। बराबर, ए खूब ज मोंघो हतो अने लेखक पासे तो आपणे पाठमां जोयुं ए प्रमाणे के पैसा ए ओछा हता अने कर्ज पण ए थयेलुं हतुं। बच्चन जी को मुक्ता प्रसाद जी ने कौन सा उपचार बताया। बराबर, हमणां आज लेक्चर में आपणे बात करी मुक्ता प्रसाद ए तेना पाड़ोशी हता। बराबर, अने एने एक इलाजनुं सूचन कर्युं हतुं। बराबर, के मुक्ता प्रसाद जी ने बच्चन जी को लुई कोने के पानी के प्रयोग से रोग दूर करने का मार्ग बताया। बराबर, आ एने रस्तो आपेलो हतो। बच्चन जी की बीमारी में भी कर्ज की चिंता क्यों करते थे। बराबर, एनी बीमारी में पण कर्जनी चिंता शा माटे करता था। कारण कि बच्चन जी के लिए कर्ज न चुका पाना मौत के बराबर था, इसीलिए वे बीमारी में भी कर्ज की चिंता करते थे। लेखक एवं मानता था कि कर्ज न चुकावू तो ये मृत्यु पाम्या बराबर है, एटला माटे लेखक छे ए तेना देवानी एना कर्जनी पण चिंता करता हता। तो आ 4 प्रश्न छे। पछी 5मो प्रश्न
जाने राम कहाँ लागे माटी, यह उक्ति बच्चन जी ने क्यों लिखी। बराबर, लेखके आ वाक्य ए शा माटे लखेलू है। तो बच्चन जी ने माता पिता की मृत्यु अपने घर में न होकर कहीं और हुई थी। तब बच्चन जी कहते थे कि भगवान जाने इसकी मृत्यु क्या होगी। बराबर, इनकी मृत्यु क्या होगी, कहाँ होगी। तो आ माटे लेखके जाने राम कहाँ लागे माटी आવું વાક્ય જણાવે, એના માતા પિતાના મૃત્યુના સંદર્ભમાં એ આ વાક્ય જણાવે છે। પછી છઠ્ઠો સવાલ છે, अपनी बीमारी से लड़ने में बच्चन जी को सबसे ज़्यादा बल किससे मिलता। तो कि अपनी बीमारी से लड़ने में बच्चन जी को सबसे ज़्यादा बल अपनी पत्नी श्यामा से मिला था। बराबर, एनी पत्नी जे सहन शक्ति हती एनामां ए जे रोगों सामे लड़ी रही हती तेमांथी ए लेखकने वधारे बळ मळतुं हतुं। विश्राम तिवारी क्या कहा करते थे। बराबर, विश्राम तिवारी कहा करते थे, मार के पीछे भूत भागे। बराबर, श्यामा ने कौन सा ब्रह्मास्त्र छोड़ा। तो एने डॉक्टर ने इलाज कराववानुं अथवा तो ए भोजन नहीं करे। बराबर, आ जे बात करी हती, बराबर, ए बात तमारे अहींया लखवानी। ए एक प्रकारनुं ब्रह्मास्त्रना स्वरूपमां ए लेखक तेने मानता हता। डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को कैसा लगा। डॉक्टर का नुस्खा बच्चन जी को मौत के परवाना लगा, एटले के मौत जेवुं लागेलुं। बराबर, तो आ रीते तमारे अहींया 8 प्रश्नों आपेला छे। पछीनो प्रश्न छे, बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन क्यों लगा। तो बच्चन जी को मरने की अपेक्षा जीना कठिन लगा क्योंकि बीमारी के कारण उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई थी। बराबर, कारण कि देवुं ए वधतुं जई रह्युं हतुं। रोग सच्चा पर पड़े पड़े बच्चन जी को कौन सी चिंता सता रही थी। तो बच्चन जी को कर्ज चुकाने की चिंता सता रही थी। लेखक के अनुसार बीमार होने का हक किससे नहीं है। लेखक के अनुसार गरीब को बीमार होने का हक नहीं है। बीमारी के प्रति बच्चन जी का क्या ख्याल था। बीमारी में बच्चन जी बीमार व्यक्ति को अपराधी मानते थे, इसलिए छोटी मोटी बीमारियां से नहीं डरते थे। इस बीमारियां में भी वे काम करते थे। काम करने वे अपने बीमार होने के अपराध में स्वयं को दंड देते थे। बराबर, ए बीमार थवा ઈચ્છતા नहोता અને बीमार होय ने तो પોતાને दंड आपता। बराबर, આપણે જોયું કે તેને બુખાર હતો, તાવ હતો, છતાં પણ તે વધારે ને વધારે કામ કરતા હતા। બરાબર, તો આ 13મો સવાલ। પછી તમને મોટા 5-6 વાક્યમાં સવાલના જવાબ આપેલા છે। પહેલો સવાલ, લેખક बीमारी में भी काम क्यों करते थे। बराबर, तो આમાં તમારે જે શરૂઆતમાં આપેલું છે એ બધી વિગત અહીંયા લખવાની છે કે બીમારીમાં પણ શા માટે કામ કરતા હતા। तो जुओ, लेखकनी आर्थिक स्थिति सारी न हती। घर खर्च चलाववा माटे ए स्कूल में भणावता हता, ट्यूशन करावता हता अने आराम करने पर लेखक को वेतन नहीं मिलता, कारण कि हवे स्कूले न जाए, ट्यूशन में न जाए तो तेने वेतन न मळे, तो पछी घर कई रीते चाले। आ माटे लेखक बीमारी में पण काम करता हता। बराबर, एने सिरदर्द, एने माथुं दुखतुं होय के जे कांई होय, ताव आवेलो होय के तो छतां पण ते कार्य करता हता। बराबर, पछी बीजो प्रश्न छे, लेखक की बीमारी सुनकर श्यामा कापकर तुरंत क्यों संभल गई। हवे स्वाभाविक छे कि एना पतिने पण बीमार छे, तो पछी हवे जो एनी पत्नी ज गभराई जाय, बराबर, तो पछी ए तेना पतिने शुं दिलासो आपी शके। आ माटे तेणे जे गभरावानुं हतुं, बराबर, श्यामा कापकर तुरंत संभल गई, तरत ने तरत ए पोते ज ए પોતાની જાતને તેને સંભાળી લીધી। બરાબર, તો આ રીતે એ લેખકની બીમારી સાંભળીને શ્યામા છે वो કાપ કર તુરંત સંભલ ગઈ। બરાબર, આ બીજો સવાલ હતો। પછી ત્રીજો સવાલ, लेखक को ऐसा क्यों लगा कि उन्हें श्यामा के लिए जीने का संघर्ष करना चाहिए। तो बीमारी में लेखक को अपने कर्जे को चुकाने की चिंता सता रही थी। उन्होंने खुद को मरने के लिए छोड़ दिया था, लेकिन तभी उन्होंने श्यामा का ख्याल आया। उन्होंने सोचा कि उन्होंने श्यामा के लिए कुछ किया नहीं है, यही उन्होंने अपने कर्जे का भार श्यामा के लिए छोड़ा, तो उनसे बड़ा अपराधी कोई न होगा। यही सोचकर उन्होंने लगा कि श्यामा के लिए संघर्ष करना चाहिए। हवे आखी जिंदगी लेखके तेनी पत्नी माटे कंई कर्युं नथी अने मृत्यु पछी जो कर्ज एनी माथे मूकता जाय तो पछी ए लेखकथी मोटो अपराधी कोई नहीं। आवुं लेखक विचारीने ए श्यामाने माटे ए जीवन सामे संघर्ष लड़े छे। बच्चन जी की पारिवारिक आर्थिक विपन्नता
के बारे में अपने विचार प्रगट कीजिए। तो લેખકની જે આર્થિક પરિસ્થિતિ હતી તેના સંદર્ભમાં તમારે અહીંયા વિચાર રજૂ કરવાનો છે। એના કર્જની વાત કરવાની છે, એના મૃત્યુની વાત કરવાની છે, શું કામ કરી રહ્યા હતા વગેરે વગેરે તમારે અહીંયા વાત કરવાની છે। તો આ પ્રશ્ન તમે લખી નાખજો। પછી ભાવાર્થ સમજાવવાનો છે। 2 વાક્ય આપેલા છે કે બીમારી અમીરો કી હરમજદગી है, गरीबों को उससे अपने पीछे नहीं लगाना चाहिए। बराबर, आ वाक्यનો તમારે ભાવ પ્રગટ કરવાનો। તો बीमारी तो अमीरों के आलस्य करने का एक बहाना है, उनके पास धन होता है तो उनका ये बहाना चल जाता है, लेकिन गरीब को रोज़ कमा कर खाना होता है, अगर वे बीमार पड़ेंगे तो उनका घर कैसे चलेगा, इसीलिए गरीबों को बीमारी से बचना चाहिए। बराबर, ये तो बीमार होय छे, लेखक हमेशा बीमार होय छे। बराबर, હવે લેખક જો લેખકની અહીંયા વાત કરી, લેખક એક ગરીબ વ્યક્તિ છે અને બીમાર હતા। તો હવે આપણે જોયું આખા પાઠમાં કે ગરીબ વ્યક્તિ હોય અને બીમાર પડે તો પછી તેનું ઘર કઈ રીતે ચાલે। બરાબર, કામ પર તો તે જઈ ન શકે। તો આ વાક્ય એ જ કહેવા માગે કે ગરીબી છે, ગરીબ વ્યક્તિ છે ને એના માટે રોગ ન હોવો જોઈએ, બીમારી ન હોવી જોઈએ, બીમારી એ અમીર વ્યક્તિ માટે હોવી જોઈએ। પછીનો બીજો પ્રશ્ન આપેલો કે કામ કે પીછે બુખાર ભાગે। તો આ શબ્દનો પણ તમારે ભાવ પ્રગટ કરવાનો છે कि तिवारी जी ने बच्चन जी से कहा था मार के पीछे भूत भागे, अर्थात मार से बड़े बड़े भूत भाग जाते हैं। बराबर, उसी प्रकार बच्चन जी का कहना था कि काम के पीछे बुखार भागे, अर्थात काम करने रहने से बुखार भाग जाता है। એટલે કે જો તમને બુખાર હોય, તાવ આવેલો હોય તો તમે સતત કામ કરો ને તો એ તાવ પણ ભાગી જાય, એવું એ લેખક અહીંયા જણાવે છે। તો અહીંયા એ તમારો જે આ પાઠ નંબર 6 છે, મેરી બીમારી શ્યામ અને લી, એ અહીંયા પૂરો થાય છે। તમારી હોમવર્કમાં એ જે મેં સ્લાઇડ્સમાં તમને સ્વાધ્યાયના પ્રશ્નો આપેલા એ તમામ પ્રશ્નો એક વખત લખવાના। બરાબર, એટલે કે આ ભાવાર્થના 2 શબ્દો, 2 પ્રશ્નો, પછી આ મોટા મોટા 4 પ્રશ્નો અને બાકીના 13 પ્રશ્નો, આ તમામ પ્રશ્નો તમારે હોમવર્કમાં એક વખત લખીને એ મોકલાવાના છે। તો આજનો લેક્ચર આપણે અહીંયા સુધી રાખીએ છીએ। નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં મળીએ ત્યારે આપણે આની પહેલાંનો જે આપણો પાઠ બાકી છે એ આપણે શરૂ કરીશું।